حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رشک اور ان کا حسد جب حد سے زیادہ ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام کی انتہائی شفقت و محبت جو آپ پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے دیکھ نہ سکے، اور افضال الہی جو رات دن حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنا نزول فرما رہے تھے اس پر سہار بھائیوں کے دلوں میں نہ رہا، تو ایک روز یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے اور زبان حال و مقال سے کہا، باپ کی یوسف سے الفت فضل رب، دو ستم ہم سے سہے جاتے نہیں۔ بھائیوں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو عاجز آ گئے۔ یوسف کے خواب اور والد بزرگوار سے حد سے زیادہ یوسف پر اتفاق اور پیار و محبت کی باتیں ہم سے نہیں دیکھی اور سنی جاتی، اور وائی ہے ہمارے حال پر کہ ہم ایسے قوی ہیکل اور ایسے شہزور اور عقیل و مدبر لیکن اس ناگوار مرض کا علاج نہیں کر سکتے اور اپنے اوپر سے یہ غم رفع نہیں کر سکتے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بچہ باپ کے اتنا منہ چڑھ جائے اور ہم تجربہ کار اور ہوشیار والد ماجد کی نظروں میں ہیچ اور محل ہو کر ان کے دل سے گر جائیں اور پھر ہم چین سے بھی بیٹھے رہیں۔ آہا، جس درد سے ہماری رات کی نیند اور دن کا کھانا پینا تلخ ہو رہا ہے، ہم اس کا کوئی علاج نہ کر سکے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بلکہ ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ یارو، اگر اپنی زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو جلدی اس کا کوئی علاج کرو اور یوسف کو باپ سے عارضی یا ہمیشہ کے لیے بالکل علیحدہ کر دو۔ کہ اتنے میں ایک بھائی نے ان میں سے کہا، اچھا یوسف کو قتل کر دو، اور اگر قتل میں کوئی مشکل پیش آئے تو یہ کرو کہ کسی سنسان جنگل یا غار میں یوسف کو لے جا کر پھینک آؤ تاکہ حضرت یعقوب کا رخ تمہاری طرف پھر جائے اور پھر تمہارے سب کام درست ہو جائیں گے۔ قتل کی سن کر ذرا چونکے سبھی، بھائی کی کچھ مام تاسی آ گئی، پھر گیا ننھا سا چہرہ سامنے اور لگے اپنے دلوں کو تھامنے، بولے یہ ہم سے نہیں ہوگا کبھی، بھائی ہے اور مامتا ہے باپ کی۔ رشک سے گو ہم یہاں تک آ گئے، قتل کی سن کر مگر تھرا گئے، اور کچھ تدبیر سوچو دوستو، اور کچھ رستہ نکالو ہم دمو، مامتا کو چھوڑ کر یہ بھی تو ہے، خون ناحق کیوں کسی کا سر چڑھے، بے خطا بے جرم بے تقصیر کو قتل کر کے چین سے بھی رہ سکو، یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا کبھی۔ آخرش بھائی ہے وہ کچھ بھی سہی، بھائی کا کچھ پاس تھا کچھ باپ کا، مشورہ آخر کو یہ رد ہو گیا۔ بعد غور و فکر کرنے کے ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنا تو کسی مصلحت اور کسی وجہ سے بھی ٹھیک نہیں، البتہ ایسا کرنا چاہیے کہ اسے یہاں سے لے چلو اور سرے راہ قریب کے جنگل میں کوئی ٹوٹا ہوا کنواں ہو اس میں چھوڑاؤ کہ کوئی راہ چلتا مسافر پانی پینے کے لیے کنویں پر آئے گا اور وہ نکال کر لے جائے گا۔ بھائیو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو بس یہ کام کرو اور دوسرے تمام خیالات دل سے نکال ڈالو۔ چنانچہ اس مشورے پر سبھی کی صدائیں آفرین بلند ہوئی اور بالاتفاق سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ ایک سموئی ہوئی تدبیر ہے، اس میں یوسف جان سے بھی جیتا رہے گا اور اپنا مقصود بھی خاطر خواہ حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب سب کا اتفاق اس رائے پر ہو گیا تو پھر یہ بات قرار پائی کہ اچھا اب حضرت یعقوب کی خدمت میں چل کر عرض کی جائے کہ ہم سب مل کر جنگل میں سیر و شکار کے لیے جایا کریں گے، آپ بھی اپنے یوسف کو کبھی ہمارے ساتھ تفریحاً بھیج دیا کیجیے۔ یہ کہہ کر مجلس شورا ختم ہوئی۔ تمام فرزندان یعقوب علیہ السلام مل کر پیارے یوسف کے پاس آئے اور ان سے نہایت اخلاق و محبت کی باتیں کرتے ہوئے پہلے یوسف سے ان کے خواب دریافت کیے۔ وہ معصوم صدیق اللہ ہونے والے تھے، تمام خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے صاف صاف بیان کر دیے، اگرچہ آپ کو والد ماجد کی بے حد تاکید تھی کہ کسی بھائی کے سامنے اپنا خواب ہرگز بیان نہ کرنا، چونکہ بمقابلہ اس تاکید کے پیارے یوسف کی شان صدیقیت بڑھی ہوئی تھی، اس لیے چھپانے کو کذب بیانی تصور کر کے سارے خواب بیان کر دیے، جنہیں خود یوسف کی زبان سے سن کر بھائیوں کی آتش حسد اور ان کا غم و الم اور بھی زیادہ ہو گیا۔
मगर निहायत ज़ब्त को काम में लाते हुए यूसुफ से प्यारी प्यारी बातें करने और उनका दिल लुभाते रहे। आखिर में उनसे ये कहा कि ए हमारे छोटे भाई, कभी तुम हमारे साथ सैरो शिकार को नहीं चलते, और अब तो माशाअल्लाह तुम होशियार हो गए हो। ज़रा चला फिरा करो, दुनिया की मालूमात होगी और कुदरते खुदाबंदी का तमाशा नजर आएगा। अच्छा लो, आज हम शिकार को जा रहे हैं, चलो और चलकर तुम भी जंगल की सैर करो और देखो कि वहाँ कैसी कैसी बहारें और सैर तमाशे हैं। प्यारे यूसुफ 12 बरस की जान अपने सौतेले भाइयों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके गर्विदा और उनके साथ जंगल में चलने के लिए आमादा और तैयार हो गई। मगर ये सबब कमसिनी और सिद्दीक होने के भाइयों से कहा कि मैं बगैर वालिदे माजिद की इजाज़त के कहीं नहीं जा सकता। तुम उनसे कहो कि वो इजाज़त दे दें तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। ये सुनकर सबके सब खुश हो गए और जल्दी से वालिदे बुजुर्गवार की खिदमत में हाजिर होकर निहायत लजाजत से और बसद खुशामद अर्ज किया, ए वालिदे बुजुर्गवार, आजकल जंगल में अजीबो गरीब सैरो शिकार हैं और शायद आज हम भी शिकार के लिए जाएं। अगर यूसुफ को हमारे साथ कर दें तो ये भी कुछ सैरो तमाशा देख ले। बच्चा है, बहलेगा और उसका भी दिल खुश हो जाएगा। ये सुनकर हजरत याकूब की हालत सुनते ही बिजली सी एक चमकी। वहाँ हो गए याकूब बस अंधु। वहाँ सैर कैसी दोस्तों, कैसा शिकार, फुरकते यूसुफ की वहाँ किसको सहार। एकदम आंखों से जो ओझल न हो, खूब सोची उसको जंगल भेज दो। तुम तो सहरा में करो सैरो शिकार, बाप बस रोता रहे ज़ारो कतार। एकदम मुझसे न ये होगा जुदा, जाओ अपनी राह लो बहरे खुदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को अपने भाइयों के साथ भेजने से इसलिए और भी ज़्यादा इनकार किया कि उससे कुछ दिनों पहले आप एक ख्वाब देख चुके थे। चुनांचा लिखा है कि एक शब आप सो रहे थे, यकायक ख्वाब में क्या देखते हैं कि ज़मीन 8-8 आंसू रो रही है और मेरे यूसुफ को अपने पास बुलाकर कह रही है कि ऐ सब मजलूमों से ज़्यादा मजलूम और ए काबिले रहम फर्जंद, और मेरे दामन में आकर छुप जा। तेरे सौतेले भाई तुझ पर जुल्म करने के लिए बढ़े चले आ रहे हैं। ये कहकर मेरे चांद से यूसुफ को ज़मीन निगल गई, जिससे उसी वक्त आपकी आँख खुल गई। चूँकि इस ख्वाब से आप डरे हुए थे, इसलिए हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों के साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया, जिससे फर्जंदाने याकूब मायूस होकर वहाँ से खड़े हो गई। जुल्म का एक दाद था खाली गया, हो सका पूरा न उनका मुद्दा। बाप के आगे कुछ ना फेरी चली, हाय कैसी जी की जी में रह गई। सब कफे अफसोस मलते रह गए, जैसे आए हैफ वैसे ही चले। बिरादराने यूसुफ ने फिर एक रोज़ मजलिसे शूरा मुनक्किद की और फिर वो गमे यूसुफ से मुखलिसी हासिल करने के लिए तजावीदो तदाबीर करने बैठे। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। कि इतने में एक बुजुर्ग सूरत और नूरानी चेहरा मर्दे अजनबी सामने आया और अपनी मुखलिसाना सूरत लेकर वो उनके पास आकर बैठ गया और सबकी बातें निहायत मोहब्बत के साथ सुनने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने देखा कि ये तो कोई बड़ा रफ़ीक तबीयत और दोस्त तुन्नियत है और है भी ज़ईफ़ुल उमर। इसका तजुर्बा भी हम सब से बहुत ज़्यादा होगा और इसकी अक्ल भी हमसे बहुत बड़ी हुई मालूम होती है। ज़रूर उसके सामने अपने दर्द की कहानी बयान करनी चाहिए और ज़रूर उससे मशवरा लेना चाहिए। कि इतने में उस हसीन सूरत व लाइन सीरत ने खुद ही मोहब्बत और उल्फत भरे लफ्ज़ों में उनसे दरियाफ्त किया कि फर्जंदाने इसराइल, तुम्हारे नूरानी चेहरे मग़मूम और मुतफक्कर नज़र आते हैं, जिससे मेरे दिल में दर्द पैदा होता है और मुझे पाकीज़ा सूरतों पर रहम और तरस आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा शरीके हाल होकर तुम्हारा गम बटाऊँ और निहायत खुलूस के साथ तुम्हारी हमदर्दी करूँ। ये सुनकर बिरादराने यूसुफ ने कहा, चुनांचे ए बुजुर्ग, क्या कहें हम तुमसे अपनी दास्तां, गम का एक दरिया दिलों में है रवां। एक मुद्दत से मुसीबत में है हम, क्या कहें क्या नाक में आया है दम। कोई सूरत बन नहीं आती हमें,
सोचते हैं या इलाही क्या करें। एक सौतेला हमारा भाई है जिसके हाथों जान पर बन आई है। बाप को जिसने मुसख्खर कर लिया, इश्क में अपने लिया और उनको दिया। रात दिन कलमा उसी का पढ़ते हैं, हर घड़ी यूसुफ ही यूसुफ करते हैं। मुल्तफित हम पर जरा होते नहीं, दो कोई तो मशवरा ए हम नशी। ये हमारी आरज़ू है ए बुजुर्ग, ये हमारी जुस्तजू है ए बुजुर्ग। बाप की नज़रों से वो उतरे कहीं, आसमां खा जाए उसको या ज़मीन। चुनांचा ए बुजुर्ग, उससे पहले हमने उसके मुतालिक ये मशवरा किया था कि वो सैरो शिकार के बहाने जंगल में ले जाकर कुएं में डाल दे और खुद रोते पीटते आकर वालिद साहब से कह देंगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। मगर जब हमने वालिद से अर्ज किया कि आप यूसुफ को सैरो शिकार के लिए हमारे साथ भेज दें, तो उन्होंने हमारे साथ भेजने से साफ इनकार किया। खुदा जाने हम पर भरोसा न किया या सिर्फ अपनी मफारकत के सबब नहीं भेजा। बहरहाल अब हम हैरान हैं कि क्या करें और क्या ना करें। कोई सूरत नजर नहीं आती। ये सुनकर पुराना पापी इब्लीस लाइन बोला कि ए मेरे प्यारो, मशवरा तो तुम्हारा बहुत उम्दा और काबिले तहसीन था और बहुत अच्छी राय तुमने कायम की थी, मगर इस राय को अमली शक्ल में लाने का अभी वक्त नहीं आया। और याकूब अलैहिस्सलाम अपने नूरे ऐन को इस मौके पर तुम्हारे साथ सैरो शिकार के लिए जंगल में कभी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। जंगलों में सिवाय धूप और रेत के और रखा ही क्या है। और फिल हकीकत जंगल में कुछ आजकल सैरो तमाशा नहीं, बल्कि सरासर तकलीफ ही तकलीफ का सामना है। बस ए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जिस तरह कहूँ उस पर अमल करो तो कतई तुम अपने मुद्दे में कामयाब होकर रहोगे। और क्या याद करोगे कि कोई अपना रफीक मिला था और उसने हमें कोई काम का मशवरा दिया था। ये बात है कि अभी तुम थोड़े दिनों सब्र करो और बरसात का मौसम आ जाने दो, जबकि जंगल जंगल नहीं रहेंगे बल्कि बहिश्त बरी का नमूना बन जाएंगे। उस वक्त यूसुफ तो यूसुफ, खुद तुम्हारे बाप याकूब का भी दिल जंगल की सैर के लिए रागिब हो जाएगा। हाँ, उस वक्त और उन तफरीह के दिनों में भी तुम खुद अपने वालिद से जंगल की सैर के लिए यूसुफ को ले जाने की तहरीक न करना, बल्कि जंगल की कैफियत और अजाइबात पर अलहदगी में यूसुफ को माइल करना और उन्हें शौक दिलाना। बच्चा है, माइल हो जाएगा और अपने बाप से वो खुद इजाज़त ले लेगा। तुम्हें वालिद माजिद से मिन्नतों समाजत करने की मुतलक ज़रूरत न होगी। इब्लीस का मशवरा सुनते ही सब बाग बाग हो गए और यूसुफ का सारा रंजो गम दिलों से जाता रहा, क्योंकि एक यकीनी मौसर मशवरा हाथ आ गया और कमान पर वो तीर चढ़ गया जो खता करने वाला ही नहीं हो सकता। अल-क़िस्सा, इस पुराने पानी की सबने मिलकर बहुत तारीफ़ व खूबी बयान की और दिल से उसका शुक्रगुजार हुए और सब इस सहाने वक्त के मुंतज़िर रहे जिसके लिए तमाम बनी नौ इंसान की आंखें लगी रहती हैं। गर्ज ये कि वो वक्त आया, हो गई सरसब्ज सहराई ज़मीं, बिछ गए हर सिमत फर्शे मखमली, खिल गए गुल और बूटे हर तरफ, गड़ गए खुशकैफ खूंटे हर तरफ। जानवर तस्बीह रब की करने लगे, अपने मालिक का वो दम भरने लगे।